Hello students, Standard 10, Subject Social Science. Chapter number 18, Price Rise and Consumer Awareness. Students, in this particular chapter, we will discuss that why there is a price rise of various goods and services in the market on a regular basis. And as a consumer of the 21st century, what awareness we must have when we buy and use different goods and services. About those concepts we will discuss in this particular chapter number 18. So let's begin. Introduction. Among many economic and social problems of India, one is price rise. Yes, India is facing many economical and social problems. About two we have already discussed in a chapter number 17, that was poverty and unemployment. Same way, another economical problem what India is facing in a modern time, that is price rise of various goods and services on a regular basis in the economy. Continuous and constant price rise in different fields of economy at a high rate is called price rise, which is a problem. Yes, first of all students, you must keep in mind that when you can say yes there is a price rise, कि आप ऐसा कब कह सकते हो कि गुड्स के प्राइस बढ़ रहे हैं? When there is an increment or increase in the price of goods and services on a continuous basis, कि जब गुड्स और सर्विसेज के प्राइस कॉन्स्टेंटली और कंटिन्यूसली बढ़ते ही रहते हैं, इट शुड नॉट बी इंटरवल कि आज कुछ एक प्रोडक्ट के प्राइस 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ 5 10 वॉट एवर बढ़े, फिर एक महीने बाद बढ़े, फिर 2-3 महीने बाद बढ़े. नो, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्राइस राइज. ओके, प्राइस राइज शुड बी कॉन्टिन्यूअस, कि रेगुलरली प्राइस के प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस. विद इन 2 3 4 5 days द प्राइसेस आर गोइंग अप. Second important thing, this price rise is not there in the goods and services of a one sector of economy only. As we have studied in the chapter number 15 that economy is having a three different sectors: primary sector, secondary sector and tertiary sector. तो अगर गुड्स एंड सर्विसेज के ये तीनों सेक्टर में प्राइसेस बढ़ते हैं, वो भी कंटिन्यूअस और कांस्टेंट बेसिस पे, है ना, और सच काइंड ऑफ हाई प्राइस रेट इज कंसिडर्ड एज अ प्राइस राइज. But price rise along with the stability is beneficial for economy. Yes. See, if there is a high increment or high rise in the price of the goods and services, it is a problem for the country. But if there is a slow and steady, stable increment in the price of goods and services, it will be beneficial for the economy. अगर बहुत स्लो पेस पे इंटरवल्स पर अगर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ते हैं तो वो इकोनॉमिक के लिए बेनिफिशियल है. सो प्राइस राइज इज बोथ, इट इज बेनिफिशियल ऑल्सो एंड इट इज अ प्रॉब्लम ऑल्सो. Generally, increase in price results in increasing profit of organizers and producers. Okay, if
there is a price rise, then the businessman, the industrialist, the producer of those goods and service will get more profit. Because of undecided profit, they gets opportunity to set up a new production unit. As the businessman and the producer earns more profit, they starts new businesses. कि जैसे जैसे बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ेगा, बिजनेसमैन अपने बिजनेस को एक्सपांड करेगा, न्यू यूनिट स्टार्ट कर पाएगा. Profit amount increases when the production cost is less than price rise. Second important thing कि प्राइस राइज होने के साथ साथ अगर प्रोड्यूसर अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर पा रहे हैं, इन दैट केस ओनली दे विल गेट द प्रॉफिट. कि प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ रहा है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हाई हो रहा है, इन दैट केस प्रोड्यूसर विल नॉट गेट प्रॉफिट. सो प्रोड्यूसर मस्ट ट्राई to reduce the cost of production in order to get the benefit of price rise as a profit. And when he gets such profit, the producer gets encouragement for a new investment. और अगर उसे प्रॉफिट मिलता है प्राइस राइज के साथ, तो वो अपने बिजनेस में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज होगा और मोटिवेट होगा. As a result, the production activity, production and employment increases. So when there is a price rise, the producer will get the profit. With that profit, he will invest and expand his business. When he will expand his business or invest money in his production activity, that will lead to more job, that will lead to more employment. Due to that increase in income, producers, organizers and businessmen can increase the wages of their employees. जब प्रॉफिट बढ़ेगा, बिजनेस एक्सपांड होगा, when there is a good benefit to the company, definitely the company or a producer will increase the salary of their employee, their workers, and in that case the common man also, है ना, those who are working in a different sectors of economy, उनकी सैलरी और वेजेस में भी इंक्रीमेंट आएगा. एंड ड्यू टू दैट इंक्रीज इन इनकम द परचेजिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस. और जब वो वर्कर्स, एम्प्लॉयज वगैरह की सैलरी और वेजेस में इंप्रूवमेंट आएगा, उनका अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज परचेज करने का कैपेसिटी बढ़ेगा. उनकी एक्स्ट्रा इनकम के थ्रू वो मार्केट में नए गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे, जिससे और लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट आ सके और उनकी एक्स्ट्रा डिमांड वगैरह की वजह से मार्केट में और न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा. सो दिस वे स्टेबल प्राइस राइज is beneficial for the economy. That what the point number 3 is saying. ठीक है. In exam you may get a question that explain how price rise is beneficial, or you can say how stable price rise is beneficial for the economy. So in that case you have to write all the points from 4 to last. Okay. So it can be said that the stable price rise is the prerequisite for the economic development. Prerequisite means you can say it is required. If you need to achieve the economic development, stable price rise is necessary. When there is a noticeable increase in the price level of commodities or services invariably and continuously at a high rate, then the production of entertainous commodities and the services do not increase, but the supply of money increases speedily. कि when there is a noticeable price rise means very high price rise in different goods and services, और किसी गुड्स और सर्विसेज का जो प्राइस राइज हुआ है वो स्टेडी नहीं है, स्टेबल नहीं है, इनवेरिएबली कोई भी अनएक्सपेक्टेड अमाउंट, कभी बहुत बड़े डिफरेंस से कभी छोटे डिफरेंस से प्राइस अप एंड डाउन हो रहे हैं. When the price rises, immediately the goods cannot be produced and supplied in a economy. Immediately market में उस product का supply नहीं कर सकते, right? And because of that, the supply of money also increases in the market. Thus, excessive amount of money is used comparatively less commodity
and this kind of price rise condition is called the inflationary situation. Then, as the products are not supplied in a market on a time, the people, those who needs those goods, जिन लोगों के पास पैसे है, वो उस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा प्राइस देना भी शुरू कर देंगे, और इस तरह से ज़्यादा प्राइस पे करने के बाद भी बहुत लिमिटेड गुड्स मिलते हैं. सच अ सिचुएशन इज कंसिडर्ड एज इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, यानी महंगाई का माहौल. High disturbance in a prices, expenditure, income, and calculation of price of production equipments, their allocation generates serious disparity in the economy by creating the chaos in money supply. Money supply means issue of new currency from the Central Bank of India into the market. सेंट्रल बैंक जो न्यू करेंसी प्रिंट करके मार्केट में इश्यू करता है ऑन अ नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, पब्लिक बेनिफिट्स, दोज ऑल कैन बी कंसिडर्ड एज मनी सप्लाई. तो अगर प्रोडक्ट के प्राइजेस में बहुत डिस्टर्बेंस है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे या हमारे एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे, इनकम से रिलेटेड कैलकुलेशंस पूरे डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेस से उनका अलोकेशन डिस्टर्ब है या अनइक्वल है, इन ऑल दीज केसेस it will create the chaos. Chaos means mismanagement in the economy. In such condition, price rise act as a hindrance in the development of economy. और ऐसे हाल में अगर फिर भी प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्राइस बढ़ते हैं तो वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हर्डल्स, ऑब्स्टेकल या तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है. So price rise is not always inflationary. One thing also you should keep in mind, students. The sentence can be asked in exam as a true false. कि price rise is always inflationary. False. हर बार प्रोडक्ट और सर्विसेज के जो प्राइजेस बढ़ते हैं उसको हम इन्फ्लेशन नहीं कह सकते. जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में भी बताया, when you can say it is inflation when the price of goods and services rises continuously and on a constant basis, and that is also with the high rate. Many times, in spite of decrease in inflation rates in economy, price of basic commodity or services used by common people increases, while the prices in the other sectors shows stable or decreasing behavior. Yes, कि many times क्या होता है कि डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर में, कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्चरी सेक्टर्स में किसी एक दो सेक्टर में प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्राइस स्टेबल्स है, पर वन ऑफ द सेक्टर में ड्यू टू सम रीजंस द प्राइसेस आर गोइंग अप, स्पेशली ऑफ द बेसिक कमोडिटी. यू टेक द एग्जांपल स्टूडेंट्स ऑफ द प्रेजेंट टाइम कि इस साल हैवी रेन की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और प्रेजेंट टाइम में मार्केट में वेजिटेबल्स वगैरह का बहुत शॉर्टेज है. कंपेयर टू दैट इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर में प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्राइस स्टेबल है, बट प्राइमरी सेक्टर में स्पेशली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में नेचुरल कैलामिटीज मीन्स ज़्यादा बारिश होने की वजह से मानसून के टाइम में आज ज़्यादा शॉर्टेज क्रिएट हो रहा है और वहाँ पे प्राइस राइज है. सो दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ इन्फ्लेशन. Now, what are the reasons for the price rise? The question is very much important from the examination point of view under the category of 4 mark or a 3 marks. It is having somewhat around 1 to 8 different reasons of price rise, about which, out of which we will discuss few here in this particular part. Mainly two factors are responsible for price rise. That is due to lack of instantaneous increase in production and supply of commodity and services in the economy. When there is a shortage of supply, when the increase in production is not possible or it is lacking, that part is responsible for the price rise. कि इकोनॉमी में जितना डिमांड है उतना प्रोडक्शन पूरा नहीं है या तो टाइम पे सप्लाई नहीं हो पा रहा, वो एक रीज़न है. And the second one is
Due to sharp increase in the total demand of the country as compared to the supply, continuous price rise is seen. कि एक शॉर्ट टाइम में डिमांड बहुत बड़ा है और सामने उतना सप्लाई नहीं है, इस वजह से भी प्राइस राइज है. सो इन शॉर्ट यू कैन से दैट स्टूडेंट्स, आप सिंपल वर्ड में ये बोल सकते हो कि व्हेन देयर इज अ मोर डिमांड देन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी, it leads to price rise. So in exam you may get a question for 2 marks that which are the main factors responsible for price rise. So these 2 points you have to write. Now let's see the main reason for the price rise in detail. The first one, increase in monetary supply. That money is increasing in the economy in the hands of people and that is leading to price rise of the गुड्स एंड सर्विस. कि लोगों के हाथ में इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा सप्लाई हो रहा है, पैसा बढ़ रहा है, इस वजह से भी इन्फ्लेशन क्रिएट होता है. हाउ? लेट्स डिस्कस. सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी इंक्रीजेस इन अ 3 वे. विच आर द 3 वे स्टूडेंट्स? लेट्स सी. फर्स्ट, बाय फिलिंग द डेफिसिट रिप्लेसमेंट, दैट इज बाय जनरेटिंग न्यू मनी. कि गवर्नमेंट जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा ट्रांजेक्शन्स होता है उसका रिकॉर्ड रखती है और एट द ईयर एंड अगर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट के मुकाबले तो उस लॉस को कवर अप करने के लिए न्यू करेंसी प्रिंट आउट की जाती है एंड व्हेन दैट मनी इज प्रिंटेड इट विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी. सो फर्स्ट रीजन. सेकंड, इंक्रीज इन सर्कुलेशन ऑफ मनी, दैट इज इंक्रीज इन ट्रांजैक्शन ऑफ मनी इन द मार्केट. कि मनी ट्रांजेक्शन्स कि लोग अपने पास जो पैसे है उसका ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं. दे आर नॉट कीपिंग द मनी विद दैम, दे आर इन्वेस्टिंग एंड स्पेंडिंग ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज और दे आर इन्वेस्टिंग इन द इकोनॉमी. एंड थर्ड, ड्यू टू डिक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेप्ट्स. और या तो जब गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक्स डिफरेंट काइंड ऑफ लोन पे इंटरेस्ट रेट कम करता है तब भी मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ सकता है. When there is an increase in money, when the supply of money is increased in an economy, income of the people, purchasing power and effective demand of commodity and services increases. But the total supply does not increase according to it. जब मार्केट में गवर्नमेंट ज़्यादा मनी सप्लाई कर रहा है, लोगों का इनकम बढ़ रहा है, उस वजह से उनका परचेसिंग पावर भी बढ़ेगा एंड द पीपल विल स्टार्ट डिमांडिंग न्यू गुड्स एंड सर्विस. बट जितना स्पीड से लोगों के पास पैसा बढ़ा या लोगों की डिमांड बढ़ी उतनी स्पीड से सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस नहीं हो पाएगा स्टूडेंट्स एंड दैट विल लीड टू प्राइस राइज. So the price rise is there in order to fulfill planned and unplanned expenditure. Government increases supply of money by generating new money through the deficit replacement policy. कभी कभी गवर्नमेंट भी अपने जो प्लानिंग किए हुए एक्सपेंडिचर्स है या सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कुछ अनप्लान एक्सपेंडिचर्स है वो कंप्लीट करने के लिए भी और डेफिसिट, जैसे मैंने आपको बोला कि ओवरऑल कंट्री का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसमें एट द ईयर एंड अगर इंपोर्ट ज़्यादा है तो जो लॉस है उसको फिलअप करने के लिए गवर्नमेंट न्यू करेंसी प्रिंट आउट करता है और उसके थ्रू भी मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ता है. स्टूडेंट्स, हियर यू आर हर्डिंग है ना, हियरिंग द वर्ड डेफिसिट अगेन एंड अगेन. कि यहाँ पे जो ये नया वर्ड आया है डेफिसिट. डेफिसिट मीन्स अ नेगेटिव अमाउंट और यू कैन से द लॉस विच कंट्री इनकर्स ड्यू टू हाई इंपोर्ट कंपेयर टू एक्सपोर्ट. अगर आपके कंट्री का एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट ज़्यादा है तो जो कंट्री को मॉनेटरी लॉस होता है दैट इज कंसिडर्ड एज अ डेफिसिट. इंक्रीज इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट. कि गवर्नमेंट अपना जो भी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, देश की सरकार चलाने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर कर रही है उसमें इंक्रीमेंट हुआ है. गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स जो उन्होंने नहीं सोचे थे वैसे कुछ खर्चे करने पड़े. डिफेंस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स और इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑफ डिफरेंट वेलफेयर स्कीम एंड फेयर्स, एक्सपेंडिचर ऑन सेलिब्रेशन, पब्लिक और प्राइवेट एक्सपेंडिचर, ऑल दिस लीड्स टू
sudden increase in supply of money in the market which will help the people to earn more और उसके थ्रू उनका परचेसिंग पावर भी बढ़ेगा. That will lead to price rise. Thus increase in purchasing power कि कंज्यूमर्स का गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने का जो कैपेसिटी है वो जब बढ़ता है तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट प्राइस राइज ही होता है. Now students, no increase is there in a total production or supply of commodity and services in the market due to unplanned expenses of the government. But due to increase in salary or allowances, the supply of money increases in the hands of people. कि गवर्नमेंट की ओर से या तो प्रोड्यूसर्स की ओर से सप्लाई में प्रोडक्शन या सप्लाई में इंक्रीमेंट नहीं हो पाया. बट the people's salary has increased, their wages have increased, and because of that they are getting a more money in their hands to buy new products and services. Along with that, resources of production starts getting more value. Second thing का जब मार्केट में ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है तो बिजनेसमैन ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ये सब की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आएगी. लेबर को ज़्यादा काम मिलेगा, ज़्यादा काम के साथ साथ वो ज़्यादा कमा पाएगा. लैंड के लिए ज़्यादा रेंट मिलने लगेगा, कैपिटल पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने लगेगा. इन सभी की वजह से ओवरऑल जो हाउस होल्ड सेक्टर्स है यानी जो कॉमन लोग हैं उनकी इनकम और सैलरी में इंक्रीमेंट देखने मिलेगा. As a result of it, purchasing power increases and total demand increases, but the supply does not increase in accordance. तो इस तरह से मार्केट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होने की वजह से, बेटर फेवरेबल कंडीशंस होने की वजह से गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड तो बढ़ती है बट टाइमली सप्लाई नहीं बढ़ पाती एंड अल्टीमेटली दैट लीड्स टू प्राइस राइज. Thus, price rise is a result as well as reason for increase in supply of money. तो इस तरह से मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा सप्लाई होने की वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्रिएट हो सकता है या तो प्रोडक्ट के प्राइस वगैरह बढ़ सकते हैं. अदर एस्पेक्ट्स, बैंक रिड्यूसेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट. क्रेडिट मीन्स लोन. कि जब मार्केट में इकोनॉमिक सिचुएशन में डिफरेंट बैंक्स अलग अलग टाइप के लोन पे जब इंटरेस्ट रेट कम कर देता है कि होम लोन का इंटरेस्ट रेट कम हो गया, ऑटोमोबाइल्स खरीदने के लिए कार, टू व्हीलर वगैरह खरीदने के लिए लोन जो था वो सस्ता हो गया, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं तो उस पर जो लोन मिलता था वो है ना चीप हो गया, इंस्टॉलमेंट्स आसानी से आप भर पाओगे. ऐसे अरेंजमेंट्स जब होने लगते हैं, इन दैट केस पीपल डेवलप्स द टेंडेंसी टू स्पेंड मोर बाय टेकिंग द लोन्स. क्यों? क्योंकि लोन सस्ता मिल रहा है तो लोग रूटीन में जो प्रोडक्ट्स अपने पास कैपेसिटी नहीं थी और नहीं खरीद पा रहे थे वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अब वो लोन ले लेकर परचेस करने लगेंगे क्योंकि लोन क्या हो गया है, चीपली अवेलेबल हो गया है, उस पर इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं. इन दैट केस देयर विल बी इंक्रीज इन डिमांड इन द मार्केट क्योंकि इकोनॉमी में बैंक रेट कम हुआ, लोन सस्ते मिलने लगे तो लोग अपनी जो रिक्वायरमेंट्स थी जो उन्होंने पोस्टपोन की थी अब वो लोन ले लेकर वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करने लगेंगे एंड दैट विल लीड टू मोर डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी एंड अल्टीमेटली दैट विल लीड टू प्राइस राइज. नाउ द सेकंड रीजन फॉर प्राइस राइज एंड दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ. एज ऑलवेज इंडिया के जितने भी इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम है उस हर एक प्रॉब्लम में एक फैक्टर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल होगा एंड दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ. Population increases at the rate of 1.9% in India. Total population of India was 121 crore in 2011. These numerical figures can be asked in exam under the MCQ or objective questions. Because of speedy increase in population of the country in 2001, an imbalanced condition in the demand and supply was created,
which led to the shortage of supply leading to price rise. कि जो स्पीड से इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, with that speed the economy is not able to produce different goods and services. Second thing, the more population is consuming more goods and services available in the economy. कि ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इकोनॉमी में हो रहा है वो भी कम पड़ता है, और सामने नई पॉपुलेशन और बॉर्न होने की वजह से या ग्रो होने की वजह से शॉर्टेज डेफिनेटली क्रिएट्स होते हैं एंड दैट लीड्स टू प्राइस राइज. Third, increase in export. Because of increase in demand of the Indian goods in the foreign market, government has encouraged the increase in export, as a result of which availability of the commodity decreases in the local or internal markets and scarcity is observed. As a businessman, स्टूडेंट्स, कि अगर आप भी बिजनेस कर रहे हो, है ना, एंड यू आर गेटिंग अ बेटर प्राइस ऑफ योर गुड्स इन अदर कंट्री देन योर ओन मार्केट, कि आप जो गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में प्रोड्यूस करते हो उसका प्राइस जो आपको इंडियन मार्केट में मिलता है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा प्राइजेस अगर आपको यूएसए, यूके, जापान, है ना, वहाँ के मार्केट में मिलेगा, तो डेफिनेटली आप भी वो प्रोडक्ट्स को कहाँ सेल करोगे? इन अदर मार्केट, है ना, इन अदर कंट्रीज मार्केट. सो सेम वे जब इंडिया से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई या तो एक्सपोर्ट दूसरे कंट्री में हो जाएगा, इन दैट केस देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर ओन मार्केट. तो वो टाइम पे हमारे खुद के ही डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई नहीं हो पाएगी and there will be shortage of the goods and service, and such shortage of supply against the demand will lead to price rise. और इस तरह से सप्लाई कम है और डिमांड तो ज़्यादा रहेगी ही, and ultimately that will lead to high price. Now availability of a raw material at a high cost. Yes, बहुत से ऐसे इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन यूनिट्स है जिनके रॉ मटेरियल्स आइदर दूसरे कंट्री से इंपोर्ट होकर आते हैं. ठीक है, सिंपल एग्जांपल ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, है ना. इंडिया का जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स है उसमें से इंडिया हार्डली 1 या 2% प्रोडक्शन ही डोमेस्टिक लेवल पर कर पाता है. More than 90% of the requirement of Indians related with the petroleum product is coming from the other nations. And that means we are importing raw materials of the petroleum product in India, and then it is processed within the India and then supplied to the people. So in such case, ये सिर्फ एक पेट्रोलियम इंडस्ट्री का मैंने एग्जाम्पल दिया. ऐसे दूसरे जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स है जिनका रॉ मटेरियल वगैरह शायद दूसरे कंट्रीज से आता हो, और उस केसेस में अगर इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन करेंसी का वैल्यू डॉलर, यूरो, पाउंड के कंपैरिजन में डाउन जाता है तो आपको यह रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव मिलेगा. और जब वो एक्सपेंसिव होगा तो उन रॉ मटेरियल्स के थ्रू बनने वाले गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस भी अल्टीमेटली बढ़ जाएंगे, एंड दैट विल लीड टू हाई प्राइस इन द मार्केट. सो लेट्स सी दैट पॉइंट. Shortage of raw material leads to increase in production cost. So the price of the commodity increases. कि कोई भी प्रोडक्ट्स हो जिसका रॉ मटेरियल अगर आपको टाइमली नहीं मिलता या उसका शॉर्टेज क्रिएट होगा तो उस रॉ मटेरियल से बनने वाले फिनिश गुड्स का प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा. On the other side, consumer of the produced goods are same worker of a common people. कि जो गुड्स बनाने वाले वर्कर है वही मार्केट में से उन प्रोडक्ट्स को खरीद के कंज्यूम भी करते हैं. दे डिमांड फॉर इंक्रीज इन सैलरी. तो जब मार्केट में डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो फैक्ट्री वगैरह में काम करने वाले वर्कर्स ज़्यादा वेजेस और सैलरी के डिमांड करेंगे. देयर इज अगेन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट, और उसके वजह से भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा. एंड दिस वे high price for the raw material
extra expenditure for the wages and salary will increase the price of the product more, and that will lead to vicious cycle of price rise keep on going on. और इस तरह से जो प्राइस राइज का ये जो चक्कर है वो चलते ही रहेगा और गुड्स से सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ती ही रहेगी. सो स्टूडेंट्स, these were the top 4 reason of price rise in the different economies. The further points we will discuss in the upcoming session. Till then, goodbye and take care of yourself.